And welcome back. In today's video, we will discuss the previous year paper of topic 9, that is statistical inference. So let us discuss 2023 question paper. 2023 question paper में first question was based on hypothesis testing. Question था, in a survey, it is found that out of 301 women, 24 women had impaired fasting glucose. If null hypothesis is to be tested that 6.3% have IFG and alternative hypothesis is that the percentage is more than 6.3, then the value of test statistic is basically test statistic find out करनी है, but उससे पहले what we know is the question is based on testing of proportions. जिसे we denote by P and P hat if we are talking about the sample proportion. So what is the null hypothesis? जब हम proportions का test करते थे तो null hypothesis used to be that P is equal to P naught. P naught क्या था? P naught was as per your null hypothesis. For example, इस क्वेश्चन में वी आर गिवन दैट इफ नल हाइपोथेसिस इज टू बी टेस्टेड दैट 6.3% हैव IFG, तो आपका नल हाइपोथेसिस एज पर क्वेश्चन हो जाएगा दैट P इज इक्वल टू 6.3%, दैट इज 0.063. सिमिलरली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? HA, दैट दिस परसेंटेज इज मोर दैन 6.3, सो P is greater than P naught, that is HA will be P is greater than 0.063. Since we have to find out the test statistic, तो इस केस में टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होती थी? We know that आपके पास 301 विमेन का सैंपल है, तो हम Z टेस्ट यूज करेंगे और यहाँ पे P हैट की वैल्यू क्या होगी, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल Z टेस्ट स्टैटिस्टिक is equal to P hat minus P naught divided by under root of P naught into 1 minus P naught divided by N, where P hat is your sample proportion. So P hat is your sample proportion means we know that 24 out of 301 have IFG, so 24 divided by 301 is your P hat, which is equal to 0.079 approximately. And P naught की वैल्यू क्या है? P naught की वैल्यू as per question is 0.063. N की वैल्यू क्या है? Sample is of 301 women. तो यहाँ से आपके पास Z statistic की वैल्यू आ जाएगी as equal to 0.079 minus 0.063 divided by under root of 0.063 into 1 minus 0.063, which is 0.937 divided by 301. अब since we can see कि आपके पास 301 है, 0.079 है, तो इट इज़ बेटर दैट आप इसको अप्रॉक्सीमेटली भी फाइंड आउट कर सकते हो टेकिंग दीज वैल्यू एज 300, 0.08, 0.06. तो once you find out, it will equal to 0.016 divided by 0.014 or approximately equal to 1.1428, so approximately 1.14. So closest answer is option number 4, which is 1.2. Next question. So this question was कि the IQ of 16 students from one area of a city showed a mean of 107 and standard deviation of 10, while IQs of 14 students from another area of the city showed a mean of 112 and standard deviation of 8. The null hypothesis to be tested is that there is a significant difference between IQ of the two groups.
The distribution with degrees of freedom and value of test statistic assuming that null hypothesis is true are. Basically question में आपको दिया है that we have two areas, let us say area 1 and area 2. area 1 में number of students n1 is given to be 16, इनका mean x1 bar is 107, standard deviation s1 is equal to 10. Similarly area 2 में number of students are 14, इनका mean x2 bar is equal to 112 and standard deviation s2 is equal to 8. Null hypothesis is that there is a significant difference between IQ of the two groups. तो null hypothesis क्या हो जाएगा? h naught is mu1 minus mu2 is equal to 0. mu1 और mu2 क्या होता था? mu1 and mu2 used to be your mean of group 1 and mean of group 2. Alternative significant difference है मतलब they are not equal, that is mu1 is not equal to mu2 या फिर mu1 minus mu2 is not equal to 0. अब टेस्ट कौन सा यूज होगा? टेस्ट यूज होगा z test is used when you have a large sample, but यहाँ पे you will use your t test or t distribution because the sample size is small or we have a small sample. अब t statistic के लिए t की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? t is equal to x1 bar minus x2 bar minus your hypothesized value which is 0 here divided by under root of s1 square by n1 plus s2 square by n2. x1 बार और x2 बार कितना है आपके पास? x1 बार is 107, x2 बार is 112 divided by s1 square कितना आएगा? 10 square that is 100 divided by n1 which is 16, s2 square कितना आएगा? 8 square which is 64 divided by n2 which is 14. तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा as equal to approximately 1.5. Okay, minus 1.5 if you take area 2 to be your n1 x2 bar x1 bar and s1 bar, then you will get a positive sign. तो t की वैल्यू आ गई which is equal to minus 1.5. if we check the options, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में t गिवन है और वैल्यू आपके पास है 1.45 क्लोज टू 1.5 इन ऑप्शन नंबर 1. बट सिंस अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें पूछा है तो लेट अस ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. रिमेंबर यहाँ पे जब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते थे तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता था एंड दैट फॉर्मूला फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज टू बी So the formula used to be that degrees of freedom are equal to s1 square divided by n1 plus s2 square divided by n2 whole square divided by s1 square by n1 by इसका whole square divided by n1 minus 1 plus s2 square by n2 whole square divided by n2 minus 1. When you will calculate it तो आपके पास approximately आएगा ये 27.8 which is approximately 28 degrees of freedom. तो option number 1 t distribution with 28 degrees of freedom and value as 1.45 is the correct answer. Next question, if alpha is the level of significance and 1 minus alpha is increased, then the width of the confidence interval of mean is. First of all, alpha अगर level of significance है तो 1 minus alpha is known as your confidence level. Okay, and confidence interval of mean के लिए formula क्या होता था
कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के लिए लेट अस सपोज वी हैव अ लार्ज सैम्पल एंड वी आर यूजिंग जेड स्टैटिस्टिक, तो वहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता था एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ n. तो if your alpha is decreasing or is decreased, then आपके पास क्या होगा, 1 माइनस अल्फा इंक्रीज कर जाएगा विच इज एज पर आवर क्वेश्चन, और 1 माइनस अल्फा अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो आपका विड्थ इंक्रीज होता है. ओके, वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स, बट अब कैसे होता है, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, जब आप अल्फा रिड्यूस करते हो तो आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है, जिसे हम ये जेड अल्फा बाई 2 कह रहे हो, तो ये क्रिटिकल वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है. अगर क्रिटिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी मतलब आप माइनस भी एक ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो और उसमें ऐड भी कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, देयरफॉर योर विड्थ of the confidence interval will increase, right? So correct answer is that it will increase. One more point to note here is that there is always a trade-off, या फिर we have an inverse relation between confidence and your precision. आपका आंसर प्रीसाइज कब होगा, प्रीसाइज जब होगा जब आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल इज लोअर. तो कॉन्फिडेंस एंड precision में we always have an inverse relation, or in better words we say that there is a trade-off. Next question, the power of a test is equal to, we all know that power of test का formula होता है it is equal to 1 minus beta, right? और पावर इन जनरल क्या होती है, पावर ऑफ टेस्ट को भी डिफाइन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स. मतलब आप एक सही डिसीजन ले रहे हो, अगर एच नॉट फॉल्स है तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा. वी हैव डन इट इन द प्रीवियस अदर पेपर्स ऑल्सो. इनफैक्ट 1 माइनस बीटा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है. तो यहाँ से बीटा क्या होता था, बीटा वॉज योर टाइप 2 एरर. रिमेंबर वी हैव two types of error, type 1 and type 2. So beta used to be the probability of type 2 error that is not rejecting when it is false, and इसे usually we also say that we have a false negative. We have discussed all of this many of times, तो I hope आपको ये सब याद होगा. Then last question, which of the following can be applied as a goodness of fit test? So we know that chi-square is applied or is used for goodness of fit. chi-square usually आप जब use करते हो जब आपके पास commonly categorical data होता है, जिस data को आप categories में divide कर सकते हो, that is known as your categorical data. और एक chi-square test statistic की value क्या होती है, summation of OI minus EI whole square divided by EI. OI क्या होता है यहाँ पे, OI is your observed frequency in the category. What is your EI? EI is your expected frequency in category I. So O stands for your observed frequency, E stands for your expected frequency. Degrees of freedom क्या है इसकी? Degrees of freedom are k minus 1, where k is the number of categories in the sample. So this is the correct answer for this question is option number 3. So 2022 के पेपर से स्टार्ट करते हैं, एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो 2022 के पेपर में आया था दैट वाज बेस्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स.
So question was, suppose that a sample of 100 independent draws from a normal distribution having unknown mean mu and known variance sigma square is observed. सैम्पल मीन हमें बताया है इक्वल टू 5 एंड हमें फाइंड आउट करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, दैट इज़ फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू. तो अगर हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू फाइंड आउट करना होता था तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता था एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाय 2 इंटू सिग्मा अपॉन रूट एन. ओके, या फिर यहाँ पे हमारे पास होता था स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार विच वॉज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन. अगर सिग्मा नहीं दिया होता तो हम इसे एस अपॉन रूट एन लिखते थे. ओके, तो यहाँ पे हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके लिए z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू होती है इक्वल टू 1.96. ये फिगर से भी आप देख सकते हो, अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना होता तो आपकी z वैल्यू होती है 1.645. अगर 95% इंटरवल फाइंड आउट करना है देन z वैल्यू इज़ 1.96. और अगर आपको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है तो z वैल्यू इज़ 2.58 अप्रॉक्सीमेटली. तो यहाँ पे हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे z की वैल्यू लेंगे एज इक्वल टू 1.96. x बार हमें कितना दिया हुआ है, x बार दैट इज़ सैम्पल मीन हमें गिवन है इक्वल टू 5. तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1.96 इंटू सिग्मा स्क्वायर अगर 1 है तो सिग्मा भी 1 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट n. सैम्पल साइज़ क्या है, n है विच इज़ गिवन एज 100, तो अपॉन अंडर रूट 100. तो यहाँ से आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा एज 5 प्लस माइनस 1.96 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 5 प्लस माइनस 0.196, जिससे आपका फाइनल आंसर आएगा 5 माइनस 0.196 से लेकर 5 प्लस 1.96 विच इज़ इक्वल टू फाइनली 4.804 टू 5.196. तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 2. तो इस क्वेश्चन में आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% पूछा गया था, इसीलिए हमने z की वैल्यू ली 1.96, बट आपसे 99% एंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप बाकी इन वैल्यूज़ को z अल्फ़ा बाई 2 की जगह यूज़ कर सकते हो एंड अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन एंड वेरिएंस इज. तो बाय नाउ आई होप यू नो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास है तो उसका मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं विच आर इक्वल टू द पैरामीटर. लेट से अगर पैरामीटर लैम्डा है तो लैम्डा के इक्वल होते हैं मीन एंड वेरिएंस. ये क्वेश्चन आप टॉपिक 7 से भी कंसिडर कर सकते हो या फिर टॉपिक 9. दोनों में टॉपिक 7 एंड 9 में कुछ ओवरलैपिंग्स हैं, तो कुछ क्वेश्चन 7 और 9 में यू कैन सी कि या तो आई एम रिपीटिंग देम या फिर कुछ 7 के 9 में हो सकते हैं एंड कुछ 9 के 7 में डिस्कस हो रहे होंगे. अब क्वेश्चन आया है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, बट आई थिंक आपको कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस की भी. तो स्टार्ट करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही. अगर आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है सो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका पीएमएफ क्या है, या फिर अगर लेट से एक्स है नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग या फिर नंबर ऑफ इवेंट्स, तो वी से कि एक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या फिर एक्स इज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसका पीएमएफ क्या हो जाएगा. उसका पीएमएफ हो जाता है एफ एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल.
इसमें पॉइंट ये भी है कि आपको ये याद होना चाहिए कि कई बार आपको लैम्डा की जगह थीटा दिख सकता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन एंड द सेम थिंग. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा हेयर. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही आपके और दो डिस्ट्रीब्यूशंस भी रिलेटेड हैं. फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम देखेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है. तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमारे पास x क्या होता है? x होता है वेटिंग टाइम until the first event occurs. Waiting time until your first event occurs. Okay, and इसका अब PDF is equal to fx is equal to 1 upon theta into e to the power minus x upon theta, और इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन is equal to theta and variance is equal to theta square. और यहाँ पे थीटा और पॉइजन कैसे रिलेटेड है, या फिर एक्सपोनेंशियल और पॉइजन कैसे रिलेटेड है? हेयर योर थीटा इज़ नथिंग बट 1 अपॉन लैम्डा. तो कई बार क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स. ओके, एंड बट वहाँ पे गिवन होगा कि लैम्डा इज़ योर पैरामीटर फ्रॉम योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आती है आपकी गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ही स्पेशल केस इनफैक्ट आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो यहाँ पे अभी तक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? वेटिंग टाइम अंटिल योर फर्स्ट इवेंट अकर्स. बट गामा में क्या होता है? गामा में x is waiting time until your alphath event occurs, and इसका जो PDF है fx is hence equal to 1 upon gamma alpha into theta to the power alpha, and न्यूमरेटर में वी हैव x टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा. और यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या होती है? गामा t इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर t माइनस 1 e टू द पावर माइनस y dy. और इधर आपका मीन क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन में? mean is equal to alpha theta and variance is equal to alpha into theta square. तो आपको ऑब्वियसली PDF याद रखने की ज़रूरत नहीं है गामा डिस्ट्रीब्यूशन में, बट यू शुड नो द मीन एंड वेरिएंस हेयर. अब गामा डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? अगर लेट्स से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, अगर अल्फ़ा 1 होगा तो यहाँ पे थीटा टू पावर 1 हो जाएगा, गामा अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, x टू द पावर 0 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x अपॉन थीटा हो जाएगा, एंड हेंस योर गामा डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स योर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो पॉइजन का मीन वेरिएंस पता चल गया, उससे रिलेटेड एक्सपोनेंशियल और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस पता चल गया. नेक्स्ट आता है आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनोमियल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट योर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है. एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आएंगे. सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अब x क्या होता है? x इज़ नंबर ऑफ ट्रायल्स until your first success. Hence उसका PMF क्या हो जाएगा? PMF is fx, that is probability of x is equal to x
is nothing but 1 minus p to the power x minus 1 into p. ओके, p बिकॉज फर्स्ट सक्सेस आपका कब आया है p पे, उससे पहले x माइनस 1 पे आपका सक्सेस नहीं था या फिर फेलियर्स थे. एंड यहाँ पे आपका मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन p एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 1 माइनस p अपॉन p स्क्वायर. इसी से रिलेटेड आपके पास होती है एक नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नाउ x इज योर नंबर ऑफ ट्रायल्स until you have rth success, and hence your PMF is probability x is equal to x is x minus 1 c r minus 1 into 1 minus p to the power x minus r into p to the power r. एंड इधर हमारा मीन हो जाता है इज़ इक्वल टू r अपॉन p एंड वेरिएंस इज़ r इंटू 1 माइनस p अपॉन p स्क्वायर. अब ये नेगेटिव बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक कैसे रिलेटेड हैं, अगर r इज़ इक्वल टू 1 दैट इम्प्लाइज कि अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर आपकी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है आपकी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो इधर भी इन दोनों केसेस में मीन और वेरिएंस इक्वल नहीं है. लास्ट ऑप्शन क्या गिवन है, लास्ट ऑप्शन गिवन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको आई होप कि अच्छे से अब तक याद होगी. उधर x क्या होता था, x वॉज नंबर ऑफ ट्रायल्स, सॉरी x वॉज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स. तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल में हम ट्रायल्स की बात कर रहे हैं और बाइनोमियल में हम नंबर ऑफ सक्सेस की बात करते हैं. एंड हेंस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, दिस इज़ इक्वल टू n c x इंटू p टू द पावर x इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस x. हेंस इसका मीन क्या होता है, मीन इज़ np and variance is equal to n into p into 1 minus p. इनफैक्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपके पास मीन और वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं. ओके, सो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 3, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ द सेम मीन एंड वेरिएंस विच आर इक्वल टू लैम्डा. Now next question was based on difference of two proportions. Question था हमारे पास, if we have two large samples drawn independently from two populations, then which of the following test statistic will be appropriate for testing the significance of difference of two proportions. Basically अब हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, difference of two proportions. तो हमारा यहाँ पे null hypothesis क्या है, P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू 0. P1 क्या है, प्रपोर्शन फर्स्ट सैम्पल से, एंड P2 क्या है, प्रपोर्शन फ्रॉम द सेकेंड पॉपुलेशन. सॉरी, P1 एंड P2 प्रपोर्शन से दोनों पॉपुलेशन से. P1 हार्ट अगर हम बोलते तो वो सैम्पल प्रपोर्शंस होती. सो कोरस्पॉन्डिंग हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल Z स्टैटिस्टिक यूज़ होगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मैंशनड है कि हम लार्ज सैम्पल्स की बात कर रहे हैं. अगर लार्ज सैम्पल होता है तो लार्ज सैम्पल टेस्ट आपका Z टेस्ट होता है. और ये क्या होता था, दिस वॉज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस P1 माइनस P2 अंडर रूट P हैट इंटू Q हैट इंटू 1 अपॉन M प्लस 1 अपॉन N. M क्या है, सैम्पल 1 का साइज़, और N क्या है, सैम्पल 2 का साइज़. और P हैट यहाँ पे क्या है, P हैट इज़ इक्वल टू M P1 हैट प्लस N P2 हैट
अपॉन m प्लस n, वेटेड एवरेज बेसिकली। और p1 हैट क्या है, p1 हैट इज़ x अपॉन m, दैट इज़ प्रोपोर्शन, सैम्पल प्रोपोर्शन फ्रॉम सैम्पल 1। p2 हैट क्या है, y अपॉन n, सैम्पल प्रोपोर्शन फ्रॉम सैम्पल 2। और q हैट क्या है, q हैट इज़ नथिंग बट 1 माइनस p हैट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में तो आपसे बस ये पूछा था कि आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, तो आप z टेस्ट यूज़ करोगे। इन केस अगर आपको यहाँ पे लार्ज सैम्पल की जगह गिवन होता कि आपके पास जो सैम्पल है दैट इज़ अ स्मॉल सैम्पल, तो स्मॉल सैम्पल का केस वैसे तो ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, z की तरह इतना इजी नहीं है। बस आप ये याद रखना कि अगर स्मॉल सैम्पल है तो हम यहाँ पे यूजुअली फिशर इरविन टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, एंड ये फिशर इरविन टेस्ट किस पे बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन योर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर लार्ज सैम्पल्स हैं तो आप z टेस्ट यूज़ करोगे, एंड अगर स्मॉल सैम्पल हैं तो आप फिशर इरविन टेस्ट यूज़ करोगे जो बेस्ड होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस पे। अब अगर z पे क्वेश्चन आया या फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक पे क्वेश्चन आया है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल पे भी क्वेश्चन आ जाए। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा इसके लिए, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए p1 हैट माइनस p2 हैट प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट p1 हैट q1 हैट अपॉन m प्लस p2 हैट q2 हैट अपॉन n. This will be your confidence interval for your difference between two proportions. Next is question number 41. Question easy भी दिखेगा पर थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट निकालना है आपको किसका, रेट पैरामीटर ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैम्पल दिस। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मिस्टेक स्टूडेंट्स ने करी, उन्होंने देखा एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन है तो सबसे पहले उन्होंने इसका PDF लिखा fx थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस x अपॉन थीटा। ये किया, उसके बाद MLE फाइंड आउट कर दिया थीटा हैट, और थीटा हैट MLE आया आपका कुछ भी, और उसमें सैम्पल वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस था, यहाँ पे अगर आप क्लियरली इसको पढ़ो तो उन्होंने कहा है एस्टिमेट ऑफ रेट पैरामीटर, और रेट पैरामीटर ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू लैम्डा, जो कि पॉइजन से आता है, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। तो आप पहले थीटा हैट MLE फाइंड आउट करोगे और उसके बाद लैम्डा हैट फाइंड आउट करने के लिए 1 अपॉन थीटा हैट MLE फाइंड आउट करोगे। दैट इज़ बेसिकली थीटा हैट MLE फाइंड आउट करने के बाद उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो MLE के कुछ स्टेप्स होते थे। MLE के स्टेप्स क्या थे, MLE का फर्स्ट स्टेप ये था कि आप एक लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड आउट करोगे जो कि होता है जॉइंट PDF, और जॉइंट PDF क्या होता है, बेसिकली आप मल्टीप्लाई करते जाओगे fx1 थीटा इंटू fx2 थीटा एंड सो ऑन, n टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। fx1 थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस x1 अपॉन थीटा, ये कहाँ से आया, fx थीटा से, इंटू अगैन 1 अपॉन थीटा ई टू द पावर माइनस x2 अपॉन थीटा एंड सो ऑन, n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन थीटा इंटू ई टू द पावर xn अपॉन थीटा। तो 1 अपॉन थीटा कितनी बार आया, n बार, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन थीटा टू द पावर n, और e टू द पावर क्या है, e टू द पावर है माइनस x1 अपॉन थीटा माइनस x2 अपॉन थीटा। तो 1 अपॉन थीटा कॉमन है, और सम किसका हो रहा है, सम हो रहा है xi का, देयरफॉर e टू द पावर माइनस समेशन xi अपॉन थीटा।
अगर ये समझ नहीं आया तो एक चीज़ देखो, अगर आपके पास a टू द पावर x होता इंटू a टू द पावर y होता इंटू लेट्स से होता a टू द पावर z, तो इसका सम ये किसके इक्वल होता, a टू द पावर x प्लस वाई प्लस z के। डिफरेंस क्या है, हमारे पास यहाँ पे बेस है e और ऊपर क्या है x1 अपॉन थीटा प्लस x2 अपॉन थीटा एंड सो ऑन टिल xn अपॉन थीटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 1 अपॉन थीटा कॉमन है, सम किसका हो रहा है, xi का, देयरफॉर समेशन xi, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन और भी है। ओके, तो अब वापस आते हैं अपने लाइक्लीहुड फंक्शन पे। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा टू द पावर n e टू द पावर माइनस समेशन xi अपॉन थीटा। लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम लॉग लेते थे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो पाए। तो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log ऑफ e टू द पावर माइनस समेशन xi अपॉन थीटा। ये ln क्यों लिखा है, ln का मतलब है नेचुरल लॉग, log टू द बेस e। तो दिस विल इक्वल टू माइनस n इंटू लॉग ऑफ थीटा, माइनस n इंटू लॉग थीटा क्यों, बिकॉज 1 अपॉन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा टू द पावर माइनस n, उसका लॉग लोगे तो पावर आगे आ जाएगी माइनस n इंटू लॉग ऑफ थीटा, प्लस ये बन जाएगा माइनस समेशन xi अपॉन n। लॉग फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते थे, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लॉग थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आएगा, माइनस n, लॉग थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन थीटा, प्लस वी विल हैव समेशन xi अपॉन थीटा स्क्वायर। समेशन xi को कांस्टेंट कंसिडर करके अगर थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो दैट विल बी माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते थे, इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस n अपॉन थीटा इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन थीटा स्क्वायर, एंड इधर से हमारे पास आ जाएगा थीटा से थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, थीटा इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन n, या फिर आप इसे x बार भी लिख सकते हो। तो हमारा थीटा हैट mle क्या आया, थीटा हैट mle आया इज इक्वल टू x बार। वैसे आपको शायद अगर प्रैक्टिस आपने की है तो आपको थीटा हैट mle पता भी होगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आता है, इट इज़ इक्वल टू x बार। तो अगर हम डेटा पॉइंट्स को देखें, x बार कैसे फाइंड आउट करोगे, सारे डेटा वैल्यूज़ को सम करके और डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा इज इक्वल टू 49 अपॉन 10। पर जैसा मैंने कहा था हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन थीटा हैट। तो 1 अपॉन थीटा हैट के लिए दैट इज़ लैम्डा हैट इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा हैट, दिस विल बी 1 अपॉन 49 बाई 10, जिसे आप लिख सकते हो 10 अपॉन 49 विच इज़ इक्वल टू 0.204। तो रेट पैरामीटर का MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट क्या आ जाएगा, 0.204। अगर रेट पैरामीटर ना लिखा होता, बस MLE फाइंड आउट करना होता एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता इज इक्वल टू थीटा हैट MLE इज इक्वल टू x बार। रेट पैरामीटर का MLE फाइंड आउट करना था, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है यहाँ पे, लैम्डा हैट विच इज़ 1 अपॉन थीटा हैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x बार एंड s स्क्वायर आर द मीन एंड वेरियंस ऑफ रैंडम सैम्पल टेकन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। Which of the following is or are parameters? अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन में हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं,
एंड अगर आपके पास सैम्पल है तो सैम्पल में आपके पास स्टैटिस्टिक होते हैं। ओके, एंड पैरामीटर्स में क्या एग्जांपल थे, म्यू, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, उनके करस्पॉन्डिंग स्टैटिस्टिक्स क्या थी, एक्स बार, एस, एस स्क्वायर। तो क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स। एक्स बार और एस स्क्वायर आपके पैरामीटर्स नहीं हैं, ये सैम्पल के बारे में बता रहे हैं, ये सैम्पल स्टैटिस्टिक है। म्यू एंड सिग्मा आपके पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। सो बोथ म्यू एंड सिग्मा आर द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, या फिर both mu and sigma are your parameters. Next is mean plus minus 2 sigma under the normal curve covers. आपको ये पता है अगर x बार प्लस माइनस सिग्मा हो तो वो कितना एरिया कवर करता है, 68.26%। x बार प्लस माइनस 2 सिग्मा कितना एरिया कवर करता है, 95.44%। एंड x बार प्लस माइनस 3 सिग्मा कितना एरिया कवर करता है, 99.72% अप्रॉक्सीमेटली। हमसे प्लस माइनस 2 सिग्मा पूछा है तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 95.44 या फिर 95.45%। एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक फिगर भी आई हैव टेकन। तो इसमें क्या है, आपके पास म्यू गिवन है, प्लस माइनस अगर सिग्मा होता है तो वो कितना एरिया हुआ, ये वाला एरिया, और ये एरिया कितना है, 68.26% या 68.27%। फिर म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा ये वाला एरिया होता है विच इज़ 95.45 या फिर 95.44%। और फिर म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा कितना एरिया होता है, 99.72% या फिर 99.73%। ये तीनों ही आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ सैम्पल ऑफ साइज n इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार इज। ये तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट n। वेरिएंस हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, सिग्मा स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड एरर कितना हो जाएगा, सिग्मा, और सैम्पल साइज क्या है, n, तो हेंस योर स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार इज सिग्मा अपॉन रूट n। कई बार इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, आपको सिग्मा और n की वैल्यू दे सकते हैं और स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना हो, या फिर आपको कोई भी इन तीनों में से 2 वैल्यूज़ दे देंगे एंड थर्ड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको सिग्मा स्क्वायर ना दे के यहाँ पे सैम्पल वेरिएंस दें, तो उधर आप s अपॉन रूट n से स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x greater than equal to 1 is the critical region for testing hypothesis lambda is equal to 2, null hypothesis है, alternative hypothesis है lambda is equal to 1 on the basis of the single observation from exponential population with rate parameter lambda। अगेन क्या आ गया यहाँ पे, rate parameter lambda। then the size of type 1 error is equal to what। टाइप 1 एरर क्या होता है, हमारे पास 2 एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। आज के ही डिस्कशन में आपके पास दोनों टाइप्स पे क्वेश्चन है। अभी टाइप 1 एरर देखते हैं। टाइप 1 एरर होता है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं इवन व्हेन आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था। ओके, तो अगर आप किसी सही चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो सही होते हुए भी, तो आप एक एरर कमिट कर रहे हो जिसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। और टाइप 1 एरर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है टाइप 1 एरर की, इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज़ नथिंग बट इक्वल टू अल्फ़ा, या फिर आप इसे साइज़ ऑफ टाइप 1 एरर भी कह सकते हैं। तो टाइप 1 एरर क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी that you have rejected your null hypothesis
व्हेन योर एच नॉट वॉज ट्रू। अब रिजेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को आप क्रिटिकल रीजन देखते हो। लेट्स से कि आपके पास कुछ इस टाइप का रीजन था, या आपकी एक्स की वैल्यू है इज़ इक्वल टू 1, अगर इससे ज़्यादा है कुछ भी तो वो आपका क्रिटिकल रीजन होगा, है ना। तो हम रिजेक्ट कब कर रहे हैं एच को, व्हेन योर एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और एच नॉट अगर ट्रू है, दैट मीन्स आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2। आई होप इट इज़ क्लियर। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये रिजेक्शन रीजन आ जाएगा क्रिटिकल रीजन से। एच नॉट ट्रू कब है, जब लैम्डा हमारे पास इज इक्वल टू 2 गिवन है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो वी हैव प्रोबेबिलिटी x लेस दैन इक्वल टू x फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर उससे पहले एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 अपॉन थीटा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा। पर रेट पैरामीटर की बात हो रही है, लैम्डा की बात हो रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा इन टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। अब अगर आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से है तो उसका CDF क्या हो जाता है, या फिर प्रोबेबिलिटी x लेस दैन इक्वल टू x क्या होती है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा x। यहाँ पे हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर दैन 1। प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इज़ नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस दैन 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, विच इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे है इक्वल टू 1, बिकॉज हम प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन 1 फाइंड आउट कर रहे थे। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स होती तो आप इसको 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स लिखते। यहाँ पे एक्स हो जाएगा 1, लैम्डा क्या लोगे, लैम्डा 2 लोगे या फिर लैम्डा 1 लोगे। हम कह रहे हैं कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो लैम्डा हम लेंगे इज़ इक्वल टू 2। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा इट विल बी ई टू द पावर माइनस 2 इंटू 1 या फिर ई टू द पावर माइनस 2। थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा दे देता हूँ। हमें टाइप 1 एरर का साइज़ फाइंड आउट करना था। टाइप 1 एरर का साइज़ होता है अल्फ़ा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर कब कमिट होता है, जब आप एच नॉट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हो इवन दो आपका नल हाइपोथेसिस करेक्ट था, या फिर इवन व्हेन योर एच नॉट वॉज ट्रू। एच नॉट को रिजेक्ट कब करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एच नॉट को आप रिजेक्ट करोगे जब एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और अगर एच नॉट ट्रू है तो हम लैम्डा की वैल्यू लेंगे इज़ इक्वल टू 2। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका PDF होता है एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 अपॉन थीटा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा, या फिर यहाँ पे अगर रेट पैरामीटर के टर्म्स में बात हो रही है तो हम इसको लिखेंगे लैम्डा इन टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। उसका CDF क्या होता है, CDF होता है एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 व्हेन लैम्डा इज़ इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस दैन 1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। यहाँ पे लैम्डा इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 1। ये सॉल्व करके आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 2। ओके, सो 2022 में ये सब क्वेश्चंस आए थे। अब 2021 का पेपर देख लेते हैं। तो 2021 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक थी, एंड मिस्टेक बेसिकली क्या थी कि आपके पास जो ऑप्शंस गिवन थे दे वर नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन था कि लेट आर पी बी द पार्शियल कोरिलेशन कंप्यूटेड ऑन सैम्पल RABC computed from a sample size n
and the test statistic for significance testing is, बेसिकली आप क्या टेस्ट कर रहे हो, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग फॉर योर पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया है RP से। नल हाइपोथेसिस क्या होता था, नल हाइपोथेसिस होता था दैट योर रो 1 to 0.34 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। नल हाइपोथेसिस ट्रू है ये कंसिडर करके हम टी टेस्ट करते थे पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए, जिसकी वैल्यू होती है RP अंडर रूट n माइनस k माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस RP स्क्वायर। और इस टी टेस्ट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती थी, n माइनस k माइनस 2। और k यहाँ पे क्या है, k है कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, RP क्या है पार्शियल कोरिलेशन, n क्या है, n है आपका सैम्पल साइज। ओके और 2 हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली 1 to 0.34 होता था। या फिर बेसिकली आप पार्शियल कोरिलेशन क्या होता था, जब हम रिलेशन फाइंड आउट करते थे 2 वेरिएबल्स में और हम बाकी सब वेरिएबल्स के इफ़ेक्ट को कंसिडर नहीं करते थे, या फिर वी से दैट रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स वाइल टेकिंग अवे द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स, लेट्स से वेरिएबल 3, 4 इन सब का इफेक्ट हटा के बस हम पार्शियल कोरिलेशन देखते थे फॉर योर वेरिएबल 1 and 2। एंड इसीलिए के यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपके कंट्रोलिंग वेरिएबल्स हो जाते हैं, जिन वेरिएबल्स को या जिस वेरिएबल को या जितने वेरिएबल को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, दैट इज़ योर कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन में एक गलत चीज़ ये थी कि यहाँ पे वी को हम यूजुअली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। v अगर यहाँ पे हम लेते तो v होता है n माइनस k माइनस 2, तो वो यहाँ पे गलत हो जाता। अगर उन्होंने v की वैल्यू दी होती k प्लस 2 तो फिर भी ठीक था, पर v की वैल्यू आज सच कोई गिवन भी नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रेलिवेंट फॉर डिराइविंग अ पॉइंट एस्टिमेट। तो हमारे पास एस्टिमेट्स 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है पॉइंट एस्टिमेट और एक होता है इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट में हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है, लेट्स से 3 आ गई, 4 आ गई, कोई भी एक सिंगल वैल्यू। और इंटरवल एस्टिमेट में हम कहते हैं कि आपका जो भी एस्टिमेट है इट लाइज बिटवीन 3 to 5, हमारे पास एक इंटरवल आता है वहाँ पे। तो पॉइंट एस्टिमेट फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट एस्टिमेट का सबसे इजी एग्जांपल क्या है, x बार, दैट इज़ सैम्पल मीन विच इज़ समेशन xi अपॉन n। तो पॉइंट एस्टिमेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, कॉन्फिडेंस डिज़ायर्ड नहीं, कॉन्फिडेंस हमें कहाँ पे चाहिए होता है, जब हम इंटरवल एस्टिमेट फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना होता है। तो कॉन्फिडेंस डिज़ायर्ड तो इज़ नॉट द राइट आंसर। सैम्पल साइज, येस वी रिक्वायर सैम्पल साइज विच इज़ इक्वल टू n इन आर सैम्पल मीन। पॉपुलेशन साइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज हम सैम्पल वेरिएबल्स देख रहे हैं, हेंस वी नीड सैम्पल वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे सैम्पल साइज n। देन वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज अगैन हम सैम्पल वेरिएबल्स की बात करें, सैम्पल वेरिएबल्स हमें चाहिए, पॉपुलेशन के कोई वेरिएबल्स हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अगर पॉपुलेशन के वेरिएबल्स हैं तो आप पॉइंट एस्टिमेट क्यों निकालोगे, फिर तो आप एज इट इज़ पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू निकालोगे, एस्टिमेट कुछ निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेंस सैम्पल साइज इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज the 95% confidence interval of average age of accidents in any city during the last year for sample size 100 with mean age 34.25 from population of standard deviation 10 is। तो अगैन हमें एवरेज का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू x बार प्लस माइनस z अल्फ़ा बाय 2 इंटू सिग्मा बाय रूट n। एक्स बार कितना गिवन है, सैम्पल हमारे पास था, उससे हमारे पास मीन एज आई 34.25। z अल्फ़ा बाय 2 कितना आएगा, z अल्फ़ा बाय 2 आएगा इज़ इक्वल टू 1.96।
बिकॉज हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। सिग्मा कितना गिवन है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 10 और सैम्पल साइज़ कितना है 100। तो इससे हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा 34.25 प्लस माइनस 1.96 इंटू सिग्मा दैट इज़ 10 अपॉन अंडर रूट 100. So this hence is equal to 34.25 plus minus 1.96 into 10 upon 10, which is equal to 34.25 plus minus 1.96. तो 34.25 माइनस 1.96 से लेकर 34.25 plus 1.96. Hence the value of your confidence interval is 32.29 to 36.21. तो आई होप आपको अभी तक ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। 2022 के पेपर में भी आया है, 2021 के पेपर में भी आया है, तो यू शुड नो इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी भी था और ट्रिकी भी था। क्वेश्चन था अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 225 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। द सैम्पल मीन फॉलोज अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए 4/3। वैल्यू फाइंड आउट करनी थी म्यू एंड सिग्मा के लिए। तो इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है with mean mu and standard deviation sigma, then x bar is also normally distributed with mean mu, but अब उसकी standard deviation is equal to sigma upon root n। हमें क्या गिवन है कि sample mean follows a distribution with mean 100, तो mu कितना है 100 and standard deviation 4/3। तो सिग्मा अपॉन रूट एन कितना गिवन है 4/3। आपसे म्यू और सिग्मा की वैल्यू पूछी है। म्यू की वैल्यू तो आपके पास 100 आ गई। सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सिग्मा अपॉन सैम्पल साइज़ कितना है 225। सिग्मा अपॉन रूट 225 इज इक्वल टू 4/3 विच इम्प्लाइज सिग्मा अपॉन 15 इज इक्वल टू 4/3। दिस बिकम्स सिग्मा इज इक्वल टू 20। तो म्यू कितना हो गया, म्यू हो गया 100 और सिग्मा हो गया इज इक्वल टू 20। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन थीटा fx थीटा गिवन है। वी आर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस जिसमें नल हाइपोथेसिस गिवन है थीटा इज इक्वल टू 1 वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा इज इक्वल टू 2। क्रिटिकल रीजन यहाँ पे क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.4। आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी टाइप 2 एरर की। तो टाइप 1 एरर था कि हम h0 को रिजेक्ट कर रहे हैं जब h0 ट्रू है। टाइप 2 एरर हम कब कमिट करते हैं, टाइप 2 एरर हम तब कमिट करते हैं जब हम बोलें कि वी आर नॉट rejecting your null hypothesis even when it is false। not rejecting बोल लो या फिर we are accepting h0 when h0 is false। critical region दोबारा देख लेते हैं। तो critical region यहाँ पे लेट से x is equal to 0.4 है। इसके राइट साइड आपका critical region लाई कर रहा है। क्रिटिकल रीजन में अगर आपकी x की वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं h0 को, अगर नहीं आएगी तो हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम टाइप 2 एरर कमिट कर रहे हैं मतलब हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इज़ लेस दैन 0.4 और h0 फॉल्स है मतलब आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है ना। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, वी विल टेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड आउट करनी है टाइप 2 एरर की, जिसे हम क्या लिखते हैं और वैसे बीटा। बीटा इज प्रोबेबिलिटी टाइप 2 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या है,
नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट, और एच नॉट कब रिजेक्ट नहीं होगा, जब x इज़ लेस दैन 0.4 एंड when h naught is false, मतलब when h1 is true, when theta is equal to 2. हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का PDF गिवन है, एफ एक्स थीटा इज इक्वल टू 1/, थीटा। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका CDF विच इज़ प्रोबेबिलिटी x लेस दैन इक्वल टू x, विच इज़ नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी से x fy/dy। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास x लिमिट्स क्या गिवन है, 0 टू थीटा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 टू x की वैल्यू क्या है, 0.4, और PDF कितना गिवन है, इट इज़ 1/, थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग 0 टू 0.4, थीटा की वैल्यू हम 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो 1/2 dx, विच इज़ 1/2 इंटीग्रेटिंग dx फ्रॉम 0 टू 0.4। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट्स क्या हैं, 0 टू 0.4, so from here you will have 1/2 into 0.4 minus 0, which is 0.4/2, which is 0.2। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर विच इज़ बीटा इज इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है, डेटा गिवन है। तो स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे, SE इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट n। सिग्मा नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, वाई, बिकॉज हमारे पास सैम्पल है, तो हम इसको लिखेंगे S अपॉन रूट n। यहाँ पे हमारे पास xi की वैल्यूज़ गिवन है, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n, या फिर आप इसको s लिख सकते हो। तो उसके लिए हमें x बार की रिक्वायरमेंट है, x बार पहले निकालेंगे, तो x बार इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन n। समेशन xi आ रहा है इज इक्वल टू 66, n कितने हैं, सैम्पल साइज इज़ 6, तो x बार आ गया 11। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे xi माइनस x बार का, और थर्ड बनाएंगे xi माइनस x बार होल स्क्वायर का। तो 4 माइनस 11 इज़ इक्वल टू -7। सिमिलरली 5 माइनस 7 इज़ -6, 10 माइनस 7 इज़ 3, 12 माइनस 7 इज़ 5, 15 माइनस 7 इज़ 8, and 20 minus 7 is, sorry, why are we taking 7? x बार आपका आया है 11, तो 5 माइनस 11 इज़ इक्वल टू -6, 10 माइनस 11 इज़ इक्वल टू -1, 12 माइनस 11 इज़ इक्वल टू 1, 15 माइनस 11 इज़ 4, 20 माइनस 11 इज़ 9। xi माइनस x बार होल स्क्वायर अगर फाइंड आउट करेंगे, 7 का स्क्वायर इज़ 49, 6 स्क्वायर इज़ 36, 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर इज़ 81। तो यहाँ से आपके पास समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर कितना आएगा, इसको सम करोगे तो इट इज़ इक्वल टू 184। तो यहाँ से s या फिर सिग्मा कितना आया, it comes out to be 184 upon, sorry, a sigma square, 184 upon 6। हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना था, तो स्टैंडर्ड एरर का आंसर कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर इज सिग्मा या फिर s, एंड इधर से आपका सिग्मा या s आएगा अंडर रूट ऑफ 184 upon 6। तो दिस इज अंडर रूट 184 upon 6
डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, एन कितना है 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 184 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 विच इज़ नथिंग बट अंडर रूट 43 अपॉन 46 अपॉन 3 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3. Then next question is, a physical instructor claims that the mean weight of students in school is greater than 82 kgs with standard deviation 20. Sample size of 81 students is selected with mean weight 90. Test statistic is equal to. तो इंस्ट्रक्टर क्या क्लेम कर रहा है कि जो मीन है स्टूडेंट्स का दैट इज़ ग्रेटर दैन 82. तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, दैट म्यू इज़ लेस दैन इक्वल टू 82. टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें एवरेज के लिए कंसिडर करनी है, प्लस सैम्पल साइज़ हमारा कितना है 81, 30 से ज़्यादा है तो हम इसे लार्ज सैम्पल बोलेंगे. लार्ज सैम्पल होते हैं तो हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं. उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन. एक्स बार कितना है, जब 81 स्टूडेंट्स का सैम्पल लिया तो उनका मीन वेट आया 90 माइनस म्यू, म्यू क्या लेते हैं, नल हाइपोथेसिस की वैल्यू दैट इज़ 82 अपॉन सिग्मा, स्टैंडर्ड एविएशन कितना गिवन है 20 अपॉन रूट एन. 81 स्टूडेंट्स का सैम्पल लिया तो n इज़ इक्वल टू 81. ये हो जाएगा 8 अपॉन 20 इंटू रूट 81 आया 9, तो 72 अपॉन 20 which is 36 upon 10 which is equal to 3.6. तो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या आई, z टेस्ट की, z टेस्ट स्टैटिस्टिक की, इट इज़ इक्वल टू 3.6. ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो टॉपिक 9 में से आए थे फ्रॉम 22 पेपर एंड 2021 पेपर. आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे एंड प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज सिमिलर क्वेश्चंस, एंड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो उनको रिवाइज़ करते रहो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन मेल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस या टेलीग्राम कर सकते हो. एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट्स होती हैं वी पोस्ट द अपडेट्स देयर, या फिर कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं फॉर प्रैक्टिस तो वो टेलीग्राम चैनल पे आते हैं. राइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. हैव अ गुड डे अहेड.